Good afternoon all dear student. Today I am going to teach you ionic compound. तो देखो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे. द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट नेमली कटायन एंड अनायन आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड. जो कटायन और अनायन से बनते हैं, दो यूनिट से बनते हैं. कटायन और अनायन वो दो यूनिट होते हैं. उससे अगर एक कंपाउंड बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं. द कटायन एंड अनायन बीइंग अपोजिटली चार्ज, जो कटायन होता है और जो अनायन होता है दोनों अपोजिटली चार्ज होते हैं. एंड देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. You know that this force of attraction between cation and anion is called as ionic bond. जो कटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, उसको ही हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे. द नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन इन ए कंपाउंड the number of cation and anion in a compound and the magnitude of electric charge on them is such that positive and negative charge balance each other. As a result an ionic compound is electrically neutral. तो इसमें क्या आ जाएगा, जो कटायन होता है, जो जितने नंबर के कटायन और अनायन होते हैं कंपाउंड में, और जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उन पे, इन सच दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस ईच अदर. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करता क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं. एज अ रिजल्ट एन आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो आयोनिक कंपाउंड रहेगा तो वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. द surface of all the particles of the crystalline substance have definite shapes and are smooth and shiny. The regular arrangement of ion in the solid ionic compound is responsible for their crystalline nature. The arrangement of ion is different in different ionic compound and therefore the shapes of their crystals are different. The main factors and determine the general arrangement of ion in crystal is attractive force between positively charged ion and repulsion force between similarly charged ion. अगर पॉजिटिवली चार्ज कब रहेगा, अगर दोनों जो आयन से अपोजिटली चार्ज है, ठीक है, तो उनमें क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. और जो क्या करेगा, एंड रिपल्सिव फोर्स किस में रहेगा, जो सिमिलर चार्ज के आयन है, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज़ नेगेटिव आयन अरेंज अराउंड द पॉजिटिव आयन एंड पॉजिटिवली आयन अरेंज अराउंड अ नेगेटिव आयन. Two of the important factors responsible for certain crystal structure are as follow. जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज on the ion, and the electrostatic attraction is neighboring ion with opposite charge is very strong. That is why melting point of ionic compound are high and also the ionic compound are hard and brittle. इसलिए ionic compound जो होता है वो hard और brittle होता है. इसके प्रॉपर्टीज़ देखने के पहले जो ionic compound है ये भी हम देखने वाले हैं. नीचे जो प्रॉपर्टीज़ दी है मैं आपको एक वीडियो के जरिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ. उसके बाद जो आयोनिक कंपाउंड है उसका भी एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ. The compounds in which the constituent particles are held by ionic bond are known as ionic compounds. Physical nature of ionic compound. Ionic compound exists as crystalline solids. They are hard and brittle. These compounds break into pieces when pressure is applied on them. Melting and boiling point. Ionic compound possesses high melting and boiling points. This is due to strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Solubility.
ionic compounds are soluble in water and other polar solvents. However, the ionic compounds are insoluble in non-polar solvents such as benzene, hexane, ether, etc. Ionic reactions. The chemical reactions between ionic solids involve regrouping of ions in their aqueous solutions. Such reactions take place rapidly. Electrical conductivity. Ionic compounds do not conduct electricity in solid states because ions are held by strong attractive forces and are not free to move. Ionic solids conduct electricity in molten state and dissolved form. कंपाउंड्स और ये जो चैप्टर है इसका वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल नॉन मेटल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका कि नाम है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो स्टार्ट करते हैं इसे। आयंस के बारे में पहले पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। तो अगर आयंस की बात, आयंस आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इट मीन्स एक होता है आपका कैटायन और एक होता है आपका अनायन। कैटायन की एग्जांपल जैसे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक Mg2+, Ca2+। सिमिलरली एनायन जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, लाइक Cl-, और इसी तरह और भी होते हैं। सो इनके थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उन्हें कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे इनसे जो कंपाउंड बनेगा इसे हम जो बोलेंगे डेट इज आयनिक कंपाउंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जैसे मुझे एक आयनिक कंपाउंड बनाना है NaCl, इसकी फॉर्मेशन शो करनी है। तो NaCl बनाने के लिए आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए पहले। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक अगर जितने 11 है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे यहाँ पे, 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2,8,1 और इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2,8,7। अब ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, ये 7। इट मीन्स अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो यहाँ पर लूज करने के बाद सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा Na+, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया उसे गेन कर लेगा क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे Cl-। तो इसी को हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे है। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे सोडियम इज Na में आप इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो होंगे। यहाँ पर एक डॉट लगाते हैं, डॉट मीन्स फॉर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से। नाउ क्लोरीन इज, कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7। तो यहाँ पे हम 7 लगाएंगे। डिफरेंट एटम है सोडियम, तो क्लोरीन एक डिफरेंट एटम है, तो हम यहाँ पे क्रॉस यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 क्रॉस का क्या मतलब है कि 7 यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लूज होके कहां पर आ जाएगा, क्लोरीन इसे गेन कर लेगा। तो ऐसे आप शो करोगे। यहां से ये बन गया Na+, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। और Cl की अगर बात करें तो Cl में अब क्या आ गया, यहाँ पे Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और एक जो सोडियम ने लूज किया था वो इसने गेन कर लिया। तो यहाँ पर कितने हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और चार्ज क्या आ जाएगा, Cl-। तो ये जो अब कंपाउंड बना है अब इसे हम बोलेंगे NaCl। दिस कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो क्लियर हो गया आपको, इस तरह फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड की, और इसको हम रिएक्शंस के थ्रू भी शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि सोडियम था Na, दैट इज 2,8,1। एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बन गया, Na+, और लूज करने वाले को हम यहाँ शो करेंगे एरो के इस तरफ शो करेंगे लूज वाले को। और अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2,8। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना था,
Cl that is 2,8,7 जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो क्लोरीन यहाँ पे गेन कर लेगा, तो +1 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl-। सो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2,8,8 ये बेसिक स्टेप्स हैं आपकी सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए। एक केस और डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ हियर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 12, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,2, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12। क्लोरीन इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 7। तो जैसा कि आपको पता है मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2+, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत है जिससे ये बन जाएगा स्टेबल। तो हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फॉर मैग्नीशियम, Mg इज 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Mg 2+, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो गए। और अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके पास, 2,8 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। नेक्स्ट इज फॉर क्लोरीन। क्लोरीन इज 2,8,7, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को, +1 इलेक्ट्रॉन, और जिससे ये बन जाएगा Cl-, 2,8,8। अब हम लास्ट स्टेप इसका शो करेंगे कि किस तरह हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम दिखाएंगे किस तरह इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। फर्स्ट स्टेप इज फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अब ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले क्लोरीन कितने होने चाहिए, क्लोरीन का एक एटम तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मीन्स क्लोरीन के भी 2 एटम होने चाहिए, तभी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम लेंगे, एक Cl को यहाँ लिख लेते हैं, एक Cl को यहाँ लिख लेते हैं। अब क्लोरीन इज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 and 7। अब हम दिखाएंगे किस तरह मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और क्लोरीन उसे गेन कर लेगा। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। इससे हमारे पास मैग्नीशियम बन गया Mg2+, इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एंड क्लोरीन के एक एटम के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक गेन कर लिया जो मैग्नीशियम ने लूज किया था। तो Cl पे चार्ज कितना आ जाएगा, -, बट ऐसा कितने क्लोरीन के साथ हुआ है, 2 क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये क्या बन गया, MgCl2। ये जो डिफरेंट कलर्स का यूज किए इसीलिए यूज किया ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके कि क्रॉस जो है वो क्लोरीन के लिए है और डॉट जो है वो मैग्नीशियम के लिए है। अलग अलग एटम है इसलिए अलग अलग यहाँ पे साइन यूज किए हैं। बाकी सारे ही जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सब इसी मेथड से बनेंगे। तो ये आपके 3 मेथड है। फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाना है कि मैग्नीशियम में किस तरह लूज हो रहे हैं, फिर क्लोरीन किस तरह गेन कर रहा है, और ये लास्ट स्टेप है आपका जिसमें हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं और उससे जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है उसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर बाकी आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए किस तरह करना है। थैंक यू। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।